Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography, Standard 7, Chapter number 7, Soil. Students, in this chapter we will study what is soil and different types of soils. Okay. Students, these are the important factors. Parent rock, this is the first factor. Remember that parent rock in a region is an important factor in soil formation. पेरेंट रॉक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल को बनाने में, डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द रॉक्स एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। जब कोई भी रॉक्स आपस में टकराते हैं तो उनकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस डिपेंड करती है रीजन ऑफ द क्लाइमेट्स। ओके, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। The rock turn into powdery material which further turn into earthy material. जब आपस में रॉक टकराते हैं या टूटते हैं तो उनमें से क्या प्रोड्यूस होता है? पाउडर प्रोड्यूस होता है। For example, the basalt rock of Deccan Plateau in Maharashtra turn into black soil after weathering. Climate is very important for the soil and rocks. Okay, महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है जब उसमें वेदरिंग होती है, जब आपस में रॉक्स टकराते हैं या रॉक टूटते हैं तो उनमें से क्या प्रोड्यूस होता है? ब्लैक सॉइल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस सॉइल इज़ ऑल्सो रिफर टू ए रेगर सॉइल। ऐसे सॉइल जो सैंड एंड क्ले से बने होते हैं उन सॉइल्स को हम रेगर सॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, रीजनल क्लाइमेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर soil formation. Okay, weathering, this is also an important factor influencing soil formation. Weathering of the rock is the first step is the process of soil formation. ये पहला स्टेप्स होता है क्लाइमेट्स। वेदरिंग मीन्स जब रॉक टूटता है तो वो सॉइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ रीजन। अब ये जो आपस में टकराने के बाद जब ये सॉइल प्रोड्यूस होता है तो ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड होता है। द क्लाइमेट डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग। अब जो क्लाइमेट से वो डिसाइड करता है कि कितनी जल्दी वो आपस में टकराएंगे और कितनी जल्दी उनसे जो है सॉइल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई वन एंड the same types of rocks give rise the different types of soil when the rocks exposed to the different climates. Because of the climates, same rock produce different types of soil. Okay, in dry climates of Deccan Plateau, weathering of basalt lead to the formation of black soil, whereas in the humid climate Western Sahyadris, the leaching of same basalt rock lead to the formation of lateritic soil. Students, we are living in Maharashtra, right? So here climate is dry climate. Okay, यहाँ की जब वेदरिंग होती है तो इसमें से ब्लैक सॉइल प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब लीचिंग मीन्स व्हाट? तो लीचिंग व्हेन वी विल रिमूव सॉल्ट इन दी रॉक्स, दैट प्रोसेस इट्स कॉल्ड लीचिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज biotic material. The weathering of rocks turn them into powdery material, but this powdery material is not soil. To turn such powdery material into soil, it is necessary that the biotic material gets mixed into it. जब कोई भी रॉक्स टूटता है या फिर आपस में टकराते हैं तो उससे जो प्रोड्यूस होता है वो सॉइल होता है। ठीक है, लेकिन उसे हम सॉइल नहीं बोल सकते बिकॉज़ उसमें कोई भी प्लांट्स के मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते, इसके लिए हम उसे सॉइल नहीं बोल सकते। ठीक है, प्लांट्स के मटेरियल जैसे कि उसमें थोड़ी बहुत रूट्स होनी चाहिए जैसे सॉइल में होती है। ठीक है, द biotic material comes from the decompositions of the remain of the plants and animal in that region. The vegetal litters, roots of plants, remain of the animal etc. तो क्या होनी चाहिए? उसमें रूट्स होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए गेट डिकम्पोज ड्यू टू द वाटर।
Microorganisms and certain other organisms help decompose the dead remain of the organic material. या फिर वो टूटते हैं तो उनमें जो भी पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नॉट soil, that is the powdery material. Okay, if we want soil, in the soil we need like roots of plants. Okay, so we need that in the soil. Microorganism and certain other organism help decompose the dead remain of organic material. The biotic material this produce get mixed into the soil and it's called humus. Microorganism is very important to decompose the remain material which is available in these soils. Okay, तो ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, तो ये सॉइल्स में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, होते हैं. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल इज़ ग्रेटर द सॉइल्स बिकम फर्टाइल. अगर सॉइल्स में ये सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो क्या होगा, सॉइल क्या होगा, फर्टाइल होगा, अच्छा सॉइल होगा, ठीक है, जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Next is a time. Soil formation is a natural and slow process. It needs a very long period of time. To form a 2.5 centimeter thick layer of topsoil, it takes 1,000 of years. From this, you may understand that soil are invaluable. In the region of high rainfall and high temperature, the process of soil formation is faster. जहाँ पर टेम्परेचर जो है हाई रहता है और रेनफॉल बारिश ज़्यादा होती है जहाँ पर, वहाँ पे सॉइल जो फॉर्मेशन है वो फास्ट होता है, प्रोसेस जो है सॉइल फॉर्मेशन का वो फास्ट होता है, ठीक है. कंपैरेटिवली इन द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल सॉइल फॉर्मेशन मेक मोर टाइम्स. जहाँ पर बारिश कम होती है और टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर टाइम लगता है सॉइल को फॉर्म होने में, ठीक है. ह्यूमन यूज़ द सॉइल गिफ्टेड बाय द नेचर एज ए रिसोर्सेज. इट इज़ मेनली यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र insecticides are used profusely. However, this lead to the degradation of soil. अब हमें जो है नेचुरली सॉइल जो है गिफ्टेड मिला है, हमारी रिसोर्सेस जो है वो नेचुरली है, ठीक है. और ये हमारा जो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए काम में आता है, तो वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज़्यादा काम में आता है, ठीक है. अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें अलग अलग टाइप्स के केमिकल फर्टिलाइज़र्स आते हैं जो कि अगर हम सॉइल में यूज़ करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा जल्दी जो है, अगर हमें सॉइल को हाई प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना होता है तो बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल आते हैं जो सॉइल को जल्दी फर्टिलाइज़ करते हैं, ठीक है, जिससे सॉइल जो जल्दी फर्टिलाइज़ हो जाता है. Now students, one activity you have to do at your home, you have to take 3 different pots, okay, and what you have to do, take 3 flower pots of the same size. Keep one pot empty, fill the second pot with water after closing the hole at the bottom, and third pot with soil. फर्स्ट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 3 फ्लावर पॉट्स, ओके. एक में आपको एक पॉट जो है एम्प्टी रखना है, एक पॉट में आपको पानी पूरा फिल करना है बॉटम तक, एंड थर्ड पॉट में आपको क्या करना है, सॉइल फिल करना है, ठीक है. पुट ए फ्यू सीड्स इन ऑल ऑफ देम. आपको तीनों में सीड्स डालनी, कोई भी चीज़ की आप सीड डाल दीजिए जिसकी जो भी आपको ग्रो करना है, उगाना है, ठीक है. कीप ऑल द 3 पॉट्स इन द सन and water the empty pot
and the soil fill pot for 4-5 days. Observe and answer the following question. आपको ये एक्टिविटी करना है. आपको क्या करना है, बाकी तीनों भी पॉट्स को जो है सनलाइट्स के एकदम सामने रखना है, ठीक है. और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि व्हाट द चेंजेस हैपनिंग इन दी पॉट्स. ओके. और आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है. तो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you all can ask me. The remaining chapter I will continue in the next video. Thank you.